آئیے اب اس کے بعد میں ہم سب کے متبع نگاہ میر کارواں حضرت اقدس مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی، صدر جمعیت علماء ضلع جلگاؤں، ڈائریکٹر وائرل نیوز اور صدر کل ہند وائس، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جس محفل میں نہ ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس محفل میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس محفل میں تم ہو۔ حضرت مفتی ہارون صاحب آپ سب کی سماعت ہے نا، قریب قریب ہو جاؤ، وہ ہمارا دعوت کا جملہ ہے، قریب قریب ہو جاؤ، بڑا پیارا جملہ ہے۔ اور حکومت نے بھی کہہ دیا کورونا ختم ہو چکا ہے۔ پیچھے مت بیٹھو بیٹا، اور جوان ادھر آ جا بیٹا، ادھر مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ جب کیمرہ چلے گا نا بیٹا تو پوری دنیا دیکھتی ہے مجھے، لندن، امریکہ، سعودی عرب، پوری دنیا میں مجھے دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ماحول لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے گاؤں کی بے عزتی اور میری بھی بے عزتی ہے۔ آ جاؤ اندر آ جاؤ، جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جاؤ۔ اور ایک کام میرے لیے، مجھ پر مہربانی کر دو، آگے آؤ تھوڑا سا، مجھ پر مہربانی یہ کر دو کہ یہ جو بچے باہر کھیل رہے ہیں ان کی آواز اگر یہاں پر آئے گی تو میرا ذہن کام نہیں کرے گا۔ میں روز آنا، ابھی میں کل مدھیہ پردیش مطلب بھوپال میں، آج آپ کے یہاں اور کل گجرات میں رہوں گا۔ روز آنا سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا میرا سفر ہے، بس کیسے میرا مالک چلا رہا ہے وہی جانتا ہے، ورنہ سوچے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، یہ بچوں کو تھوڑا سا یہ جو شور بچا رہے یا تو ان کو باہر نکال دو یا تو ان کو بٹھا دو، کیونکہ اب میں جو بولوں گا تو تھوڑا سا۔ چلیے، تمام عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں، میں گزارش کروں گا آواز آنی چاہیے، پہلے بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے فوراً۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میرا ایک انداز ہے، میرا اسٹائل ہے، میں کچھ
اشعار سے جن میں کوئی بڑا سندیش کوئی پیغام ہوتا ہے میں ان اشعار سے بات شروع کرتا ہوں جو بالکل سادے الفاظ ہوتے ہیں. یہ جو اشعار پیش کر رہا ہوں ان میں بہت بڑا پیغام ہے. ان اشعار کو غور سے سنی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. آپ بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. آپ بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ, اور ایک بار زور سے سبحان اللہ. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی مانگو کسی سے. دیکھو تعلیم, ایجوکیشن, شکشن کی اہمیت کیا ہے ان الفاظ میں آپ سمجھو, ان اشعار میں آپ سمجھو. میں جب بھی کوئی تعلیمی جلسہ ہوتا ہے وہ اسکول کا ہو کالج کا ہو, میں خود ایک کالج میں پروفیسر ہوں, ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. یہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں مولانا میں, کبھی کبھی ان لوگوں کو کیا لگتا مولانا ہے نہیں سمجھا حافظ جی نہیں, میں ڈاکٹروں کا پروفیسر ہوں. میرے خود کے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں, 3 بیٹیاں ڈاکٹر, 3 بہویں ڈاکٹر اور 5 بیٹے ڈاکٹر, اور ڈاکٹر کے ساتھ میں عالم بھی, مفتی بھی, انجینئر بھی, وکیل بھی. اب تعلیم اور یہ سب کچھ مولانا مبین صاحب, مولانا منصور صاحب, یہ سب علم کی, تعلیم کی, ایجوکیشن کی اور شکشن کی برکتیں. تو پھول سانگی والوں دیکھو ان الفاظ کو سننا. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کہہ دو زور سے سبحان اللہ, ایک بار اور سبحان اللہ. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں علم کی دولت مانگو؟ شمشیر خان صاحب, علم کی دولت کیوں مانگو؟ تو یہ شعر دیکھیں. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے, علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی. زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پا
جاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا، بڑی مقدس، بڑی نورانی اور بڑی پاکیزہ محفل کے ادھیکش صدر محترم الحاج حافظ منصور خان صاحب عمر کھیڑ، جناب مفتی سید منور صاحب، میرے دوست جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے میں یہاں تک پہنچا، ڈاکٹر حافظ مبین سراجی صاحب پوسد، محترم مدرسہ تحفیظ القرآن پوسد، مفتی عمر صاحب اشاعتی، مولانا سلیم صاحب اور پھول سانگی والوں، یہ دو چار نام میری چٹھی میں لکھے ہوئے ہیں جو میں نے جلدی جلدی لکھ لیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ پورا اسٹیج اللہ کی قسم آج مولانا ایوب صاحب آپ کا اخلاص ہے، یہ آپ کی سچی نیت ہے کہ آج ہمارے اس گاؤں پھول سانگی میں آج اتنی بڑی تعداد میں باہر سے علماء آئے ہیں، ان کے قدموں کی برکتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے سب نے آمین کہنا، میں کوئی بھی دعا کرواتا ہوں تو آمین کہلواتا ہوں، اور اس لیے آمین کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم، کیونکہ مجمع میں معصوم بچے بھی ہے، جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، سفید بال والے بزرگ بھی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں دعاؤں پر کہ نہ جانے اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، تو کہیں گے آمین انشاءاللہ۔ اب دیکھیں میں آپ کے لیے دعا کروا رہا ہوں، پھول سانگی کے لیے دعا کروا رہا ہوں، دعا کے الفاظ سنیں اور آمین کہے، اے اللہ آج اتنے علماء، اتنے مفتی، اتنے امام، اتنے قرآن کے پڑھانے والے، مسجدوں کے امام، میرے مولا اتنے علماء یہاں پر آئے ہیں، میرے مولا ان تمام علماء، مفتیوں، اماموں اور حافظوں کے قدموں کی برکتیں ہمارے اس گاؤں پھول سانگی کو نصیب فرما، زور سے کہہ دو ہے نا بھائی؟ بہت بڑے لوگ ہیں یہ، آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں یہ؟ دنیا نہیں بتائے گی آپ کو، لیکن میں ایک مفتی بھی ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں شاید کسی نے میری گاڑی دیکھا ہوگا تو وہ سمجھ بھی گئے ہوگے کہ میں ایک پارٹی کا بڑا سیاسی نیتا بھی ہوں، مہاراشٹر کا مہا وکاس اگھاڑی کا پروکتا بھی ہوں، میں میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، سمجھ رہے، ایک مسجد کا امام ہوں، اور ایک چینل کا مالک ہوں، ایک پیپر کا مالک ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قسم اللہ کی یہ ساری چیزیں علم کی برکتوں سے اللہ نے مجھے دیا ہے، اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا نا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، منصور صاحب، مبین صاحب، کہ زندگی مانگو۔ ہو پھول سانگی والوں، آج جو میں باتیں کروں گا کبھی آپ کو سننے نہیں ملی ہوگی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ علم، تعلیم، ایجوکیشن، شکشن کی کتنی اہمیت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ زور سے بولو کیا مانگو اللہ سے؟ زور سے ایک بار کیا مانگو اللہ سے؟ کیا مانگو اللہ سے؟ ماشاء اللہ، علم کی دولت مانگو، تخت مت مانگو، تاج مت مانگو، ہم کہتے ہیں حکومت مت مانگو، بلکہ مبین صاحب میں تو ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ آج کل ملک میں حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کس کو بھی نہیں جاری، نہیں سمجھا؟ کس کو بھی نہیں جاری۔ ابھی اس سے پہلے ہمارے مہاراشٹر کی حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ رکشا والے کے ہاتھ میں، نہیں سمجھا؟ کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولو شرما مت۔ اچھا یہ کوئی ایسا مذاق والی بات نہیں ہے، اوریجنل بات ہے۔ ایک نعت سن لے، اپنا بہو، لاڈلی بہنوں کا بھائی، رکشا والا، کیوں؟ تو پہلے حکومت تھی رکشا والے کے ہاتھ میں، دہلی کی حکومت ہے پہلے تھی جھاڑو والے کے ہاتھ میں،
اچھا آپ سب خود بولیں گے اب ملک کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ خود کہتے بھائیو بہنوں میں نے کئی سال تک پلیٹ فارم پر چائے بیچی ہے، وہ خود کہتے ہیں۔ تو پھول سانگی والوں میں پیغام دے رہا ہوں، میں سندیش دے رہا ہوں، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مولانا جتنے مرد ہیں ان سے ڈبل تعداد میں آج میری مائیں بہنیں آج اس عظیم الشان اجلاس میں جامعۃ الصالحات نسوہ للبنات ان بیٹیوں کے مدرسے کے اجلاس میں آج ہزاروں کی تعداد میں مائیں بہنیں، میں آج تمام سے پھول سانگی والے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ قسم اللہ کی، اللہ سے علم مانگو، علم مانگو، تعلیم۔ ابھی آپ دیکھو کل میں بھوپال میں تھا، 26 جنوری کو احمد آباد میں تھا، میں جہاں جاتا ہوں مفتی صاحب، ارے باپ رے 200 گاڑیوں سے ہوائی اڈے پر استقبال، پھولوں کی بارش آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پھولوں کی بارش اگر ہم پر برسائی جا رہی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف اس علم کا کمال ہے جو اللہ نے دیا۔ ملک کے میرے ہندو بھائیوں نے اور پھول سانگی والوں، ملک کے میرے پترکار ہندو بھائیوں نے مجھے پورے ہندوستان کا میڈیا کا ادھیکش بنایا، نفرتوں کے اس دور میں ایک ملا کو ادھیکش بنایا، میں میڈیا کا بھی ادھیکش ہوں، سمجھ لیا؟ نریندر جی مودی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے بڑا گھبراتے ہیں، سمجھ لیا؟ یاد رکھو میں بہت سادے انداز میں آج مبین صاحب یہاں پر بات شروع کر رہا ہوں کہ میرے یاروں پھول سانگی والوں، میں آپ کے گاؤں میں آیا، آج آپ کو اتنا ہی سمجھاؤں گا کہ قسم اللہ کی علم بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے کہا نا کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر، بولو زور سے، زور سے زور، جگا دیتا ہے، اور علم سیکھو گے تو تقدیر سمجھ جائے گی زندگی، ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ منصور خان صاحب ابھی قرآن کی آیت آپ نے پڑھا اور میں نے بھی خطبے میں پڑھا، پھول سانگی والوں اور میری بہنوں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو سنو، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، کتنی؟ ایک مرتبہ اپنی زبان سے بولو، 6666 آیتیں۔ ایک آیت مبین صاحب، ایک آیت یعنی اللہ کا ایک آرڈر، اللہ کا ایک حکم۔ اور ذرا سوچو کہ 6666 آرڈرز میں آپ ذرا سوچو کہ جو سب سے پہلا حکم آیا ہوگا، سب سے پہلا اللہ کا آرڈر آیا ہوگا، وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو قرآن میں، او پھول سانگی والوں، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکات کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا، کسی بھی عبادت کا اور عمل کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا۔ آپ تعجب کریں گے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، ابھی 13 دنوں کے بعد میں آپ روزہ رکھیں گے، اتنا پیارا عمل ہے روزہ، میری بہنوں اتنا پیارا عمل ہے روزہ کہ اللہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ، جو میرے بندے، جو میری بندیاں میرے لیے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ، اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی کتنا بڑا عمل ہو گیا، بہت بڑی عبادت کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، لیکن روزے کا حکم پہلے نہیں آیا۔ حج اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر حج کو کوئی جاتا ہے، چاہے پھول سانگی کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو، جو بندہ حج کو آئے گا، جو بندی حج کرے گی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں ان کو ان کے گاؤں ایسے گناہوں سے پاک صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے آج، مگر کمال کی بات ہے حج کا حکم بھی قرآن میں پہلے نہیں ہے۔ نماز ابھی پچھلا مہینہ معراج، شب معراج آئی کہ اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور وہاں پر ایک تحفہ دیا اور وہ نماز کی شکل میں تھا۔
آسمانوں پر بلا کر دیا گیا اور پھر کہا گیا نبی سے کہ اے محمد کہہ دو ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے محبوب عمل، پیارا عمل کوئی ہے، پسندیدہ عمل تو وہ نماز ہے۔ لیکن مسلمانوں اللہ کی قسم روزہ، نماز، حج، زکات ان کا حکم پہلے نہیں آیا۔ قرآن میں سب سے پہلی جو آیت اتری کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا شبد جو پہلا آیا آسمانوں سے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے۔ اقرا کے شبد کے معنی ہے پڑھو، پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی سب سے پہلے حکم کا گیا پڑھ، کیا گیا؟ شکا۔ مبین صاحب آج دوسروں نے لے لیے، وہ سمجھ گئے اشارہ؟ ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر نے اپنی قوم کو 3 منتر دیا۔ آج وہ پوری قوم ان 3 منتروں پر کام کر رہی ہے جو ان کو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے دیا۔ پہلا منتر کیا بتایا تھا؟ شکا، تعلیم حاصل کرو۔ ارے بھائی کہاں کا ہے وہ؟ بولو نا قرآن سے۔ پھر دوسرا حکم بابا صاحب امبیڈکر نے اپنے سماج کو بتایا، کیا؟ سنگٹت ہوا، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی ڈالتا کیا ہاتھ ان پر؟ ارے بولو نا یار، پولیس اسٹیشن ہل جاتا، راستے ارے بولو نا بند ہو جاتے۔ کیوں؟ امبیڈکر وادی بھائیوں کا اتنا دبدبا ہے، ان کے لیڈر نے ان سے کہا شکا پڑھو۔ آج بڑی بڑی حکومت کی اعلیٰ کرسی پر میرے بودھ بھائی بیٹھے ہوئے، کیوں؟ شکا، سنگٹت ہوا، یعنی کیا؟ متحد ہو جاؤ۔ ارے متحد ہونے کا حکم قرآن میں تھا، اللہ نے کہا تھا، اللہ نے ہم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، آپس میں جھگڑنا مت، قرآن کی آیت۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی، تمہاری پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ مسلمان نے اس آیت کو نہیں سمجھا، مسلک کے نام پر لڑ رہا ہے، جماعتوں کے نام پر لڑ رہا ہے، مسجدوں کے نام پر لڑ رہا ہے، برادریوں کے نام پر لڑ رہا ہے، نہ جانے کتنے ناموں پر مسلمان لڑ رہا ہے۔ آج ملک میں مسلمان کی ہوا اکھڑ گئی، کوئی بھی آ رہا اور گھنٹے کے جیسا بجا کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ سنگٹت رہا، یہ کہا کا آرڈر ہے قرآن سے۔ شکا بھی کہاں سے؟ ارے بولو نا یار، زور سے بولو۔ سنگٹت ہوا قرآن سے، اور تیسرا منتر وہ بھی قرآن سے جو بھیم صاحب امبیڈکر نے بتایا تھا، کیا؟ سنگھرش کرا، یعنی کیا؟ محنت، کیا کرو؟ محنت۔ اور ہم کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے پایا۔ آج میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے جو آدیش تھے، قرآن کے جو سندیش تھے، قرآن کا جو میسیج تھا، قرآن کا جو پیغام تھا، آج غیر مسلم بھائیوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو وہ آج دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ مسلمان سمجھنے کو تیار ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھول سونگی والوں، قسم اللہ کی آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں مفتی ہارون ندوی، یہ مدرسے کا جلسہ ہے، لیکن پہلے ایک بات سن لو، اللہ کی قسم، یہ جتنے ملا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی ملا آپ کو دنیا کی اچھی تعلیم لینے سے منع نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں، کل بھی میں نے بھوپال میں کہا مفتی صاحب، آج کے 8 دن کو میں یہاں ناگپور میں تھا RSS کے گڑھ میں، میں نے کہا مسلمانوں، ہم تم سے کہتے ہیں بناؤ اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر، بناؤ اپنے بچوں کو اچھا انجینئر، بناؤ اپنے بچوں کو اچھا وکیل۔ دلی میں میرے لیڈر، میرے قائد، جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے مسلمانوں سے کہا،
हजारों लाखों का मजमा था। मुसलमानों से अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को अच्छा वकील, क्योंकि आज मेरी कौम के हजारों मुसलमान जवान बेकसूर जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं। आज उनका केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। सही है? आपको मालूम है बाबरी मस्जिद मुसलमानों का सबसे बड़ा केस था, लेकिन कमाल की बात है कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए जो सीनियर वकील था वो मुसलमान नहीं था। कौन था? हिंदू भाई। हम आपसे कहते हैं कि बनाओ ना वकील, बनाओ ना इंजीनियर, बनाओ डॉक्टर। ये देखो मेरी बेटियां बैठी हुई है, मैं एक मिसाल देता हूं, मुसलमानों तुम्हारे दिमाग में उतर जाएंगी वो मिसाल, और अभी तक शायद नहीं सुनाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपकी बेटी या आपकी बीवी या आपकी मां या आपकी बहू हमल से है, प्रेग्नेंट है, हमल से है, 7 महीने 6 महीने का हमल हो गया या डिलीवरी का वक्त करीब है, अब डॉक्टर क्या लिखता है सुनो, बड़ा डॉक्टर लिखता है सोनोग्राफी करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? सबसे पहले क्या बोलता हूं? सोनोग्राफी करना पड़ेगी। अब तुमको अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बीवी, अपनी मां को अगर सोनोग्राफी कराना है तो तुमको गैर मुस्लिम हिंदू मर्द डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ता। फिर वो सोनोग्राफी कैसे होती है मुझे बोलने की जरूरत मुबीन साहब सोचो। अब वो गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मां और तुम्हारी बहन की सोनोग्राफी करता। मैं ये कहता हूं मुसलमानों कि अगर पूरे गांव में तुम्हारी एक अच्छी मुस्लिम बेटी डॉक्टर होगी और वो बड़ी डॉक्टर होगी तो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी माएं, तुम्हारी बीवियां उसके पास में जाएगी और पर्दे के साथ उनका इलाज होगा। कहां इस्लाम ने तुमको मना किया कि अपनी बेटियों को अच्छी डॉक्टर न बनाओ? मेरा खुद का हॉस्पिटल है मेरे शहर में, मेट्रो, मेरे हॉस्पिटल का नाम है मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 3 बेटियां मेरी वहां हैं, 2 बहुएं मेरी वहां हैं। मेरा एक भतीजा अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और एक भतीजा डॉक्टर बनकर सऊदी हुकूमत में मक्का में है। मेरा सक्का भतीजा। हम क्या मना कर रहे हैं आपको? हम कहते हैं कि दुनिया बेहतरीन अंदाज में पढ़ाओ, हम मना नहीं करते कसम अल्लाह की, लेकिन हमारी अपील यह है मुफीन साहब, हमारी दरखास्त यह है कि तुम अपने गांव में स्कूलें भी तुम्हारे अपने हाथों में लो, ताकि आज आप देखो कि तुम्हारी हमारी बेटियां अगर गैरों की स्कूल और गैरों के कॉलेज में जा रही है तो कसम अल्लाह की आज वो बच्चियां, मुझे अफसोस हो रहा कहते हुए कि आज सैकड़ों हजारों बच्चियां आज मुर्तद हो रही है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे बोलो ना, सुन रहे? अब हम क्या कहते हैं आपसे? हम ये कहते हैं आपसे मौलाना मंसूर खान साहब, हमारी राय क्या है? हम ये कहते हैं कि बच्चा बना स्कूल में पढ़ा, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कॉलेज में पढ़ा, हम मना नहीं करते, लेकिन हमारा क्या कहना है मुबीन साहब, मंसूर खान साहब, मौलाना अय्यूब साहब, हमारा ये कहना है फूल सांगी वालों कि अपने बच्चों को पहले इतना दीन, ईमान और इस्लाम और कुरान दे दो कि जब वो मार्केट में जाए तो कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब ना हो। बस इतनी तमन्ना है हमारी। आज आप देखो मैं कोर्ट में जाता हूं, मैं जमीयत उलमा का भी सदर हूं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी संगठन अगर कोई है जिसने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को भगाने में काम किया था, वो हम गर्व से कहते हैं, फख्र से कहते हैं कि वो मुसलमानों के संगठन है जमीयत उलमा हिंद, जिसे स्वतंत्र सेनानियों के संगठन और मुजाहिदीन आजादी के संगठन कहा जाता है, जिन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है, कि जिन्होंने आजादी के लिए लड़ा और अंग्रेजों को यहां से भगाया। मैं जमीयत उलमा का जिले का 16 साल से सदर हूं और अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि मुझे पूरे महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं आपसे कहता हूं एक जिम्मेदार, ये क्यों कर रहा हूं? एक जिम्मेदार होने के नाते हम आपसे कहते हैं कि हम आपको स्कूल कॉलेज की तालीम देने से मना नहीं करते। अगर हम अपील ये करते हैं कि अगर तुम्हारी स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा मदरसा होगा, मेरे शहर में हमारे 11 कॉलेजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि 13,000 बच्चियां और बच्चे आज हमारे हाथों में हैं। मुबीन साहब 13,000 बच्चे। हम आपसे ये कहते हैं कि आप कॉलेज
कॉलेज में जरूर भेजना, स्कूल में जरूर भेजना, हम मना नहीं करते, लेकिन हम क्या कहते हैं कि पहले अपनी बेटी को मोमिना तो बना दे, ये दीन का छोटा सा कोर्स तो करवा दे, पहले अपनी बेटी को दाइया तो बना दे। और मेरी बहनों, ये जुमला कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोर्ट में जाता हूं, जमीयत उलमा की तरफ से जब कोई केस चलता है, कोर्ट में जाता हूं, शर्म आती है मौलाना, शर्म ही आती है कि मुसलमान की बेटी अदालत में ये अर्जी देती है, ये एप्लीकेशन देती है। क्या है जुमला सुनो, मुसलमान की बेटी कोर्ट में जाकर ये लिखा रही है कि मैं अपनी मर्जी से दीन को, इस्लाम को, ईमान को छोड़ रही हूं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबकी बस हिफाजत फरमाए। मुसलमान की बेटी, और अगला जुमला सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगला जुमला क्या लिखाती है मुफ्ती साहब, वो मुकदमा दर्ज कराती है और वो ये लिखाती है कि मेरी जान को खतरा मेरे मां बाप से है। कितने अफसोस की बात। अरे जिस मां ने, जिस बाप ने तुझे 20 साल का किया, 22 साल का किया, 18 साल का किया, वो इश्क का चक्कर, वो प्यार का चक्कर, आज पूरा जाल बिछा हुआ शैतानों का, वो हमारी बेटियों पर जाल डाल रहे हैं और जाल डालने में कामयाब हो रहे हैं। और फिर 20 साल की बेटी, 20 साल तक के जिन मां बाप ने पाला, वो कोर्ट में लिखाती है कि मेरी जान को खतरा मेरे मां बाप से है। कसूर हमारा भी है, क्योंकि हमने उनकी दीन की, इस्लाम की, ईमान की बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन का इंतजाम नहीं किया। ओ फूल सावंगी वालों, कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं कि यह मदरसा जो यहां पर चल रहा है, जामिअतुस सालिहात, क्या सालिहात का माने मालूम है? सालिहात के माने क्या होते हैं? अरे बोलो ना, बोलो ना, मालूम है क्या? मौलाना अयूब साहब, अपने मदरसे का मतलब भी तो समझाना पड़ेगा इनको, समझे? जामिया किसको कहते वालों? यूनिवर्सिटी, बड़ा कॉलेज। कहो इंशाअल्लाह ये हमारे बेटियों का मदरसा बड़ा मदरसा बनेगा, जोर से कहो इंशाअल्लाह। नामों के असर पड़ते भैया, नाम का असर पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी ने फरमाया, हमारे प्यारे लाडले नबी ने फरमाया कि नामों के असरात पड़ते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि अपने बच्चों, और मैं नहीं कहता हूं, खुद नबी ने कहा कि अपने बच्चों के नाम भी अच्छे रखो। क्यों? अब ये मदरसे का नाम है अस्सालिहात। सालिहात, सालिहात का मतलब क्या होता? नेक औरतें, नेक बेटियां। तो जाहिर बात है, जब मेरे नबी ने कह दिया कि नाम का असर पड़ता है, और हमारा तो ईमान है, देखो कह देना, हमारा तो ईमान है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत, जोर से बोलो, गलत हो सकती है, और पीएम की तो कभी सही। अरे बोलो, उसको खुद नहीं याद है कि पैदा होने के बाद कब सच बोला था उसने। क्यों? हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला वगैरह 2 साल का हो गया और कमबख्त अजीब हरकत कर रहा। मैंने कहा क्या कर रहा खाला? तो बोले मुफ्ती साहब कुर्ता नहीं पहन रहा। क्या नहीं पहन रहा? कुर्ता नहीं पहन रहा। मैंने कहा खाला उसका नाम क्या रखी? तो बोले उसका नाम सलमान है। मैंने कहा खाला नहीं पहनेगा हूं। नहीं समझे आप? अरे समझ गए इशारा? मैंने कहा खाला तूने नाम रखी ना सलमान, और ये नाचने गाने वाले को 2 कौड़ी के आदमी को सामने रखकर तूने नाम रखी ना। अगर तू हुजूर के दोस्त हजरत सलमान के को जहन में रखकर नाम रखती तो उसके असरात आते, मगर तुम्हारे जहनों में तो कौन है? ये नाचने गाने वाले। अभी मेरा मुंबई में बयान हुआ, इन्हीं में बयान हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बयान हुआ। दावत के साथियों ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को जमा कर दिया। मेरा बयान हुआ इन हीरो हीरोइन और वो टीवी सीरियल वालों में, सब में बयान हुआ मेरा। तो मैंने खुद उनसे कहा, मैंने कहा बुरा मत लगने देना। मैंने उन तमाम हीरो से कहा कि देखो लोग तुमको, जवान तुमको अपना हीरो मानते हैं, हीरो। जवान तुमको इतना मानते हैं कि तुमने कान में बाली पहनी खान साहब, तो इसने कान में बाली, अरे बोलो ना, पहन लिया। तुमने हाथ में चूड़ी पहनी तो इसने चूड़ी पहन लिया। मैंने कहा खान साहब तुमने फटेल पैंट पहनी तो इसने फटेल पैंट पहन लिया। खान साहब अगर तुम 2025 की किसी फिल्म में पायल पहन लो तो ये पायल भी, इतना मानते हैं तुम्हें। लेकिन मैंने कहा कि तुम हमारे हीरो नहीं हैं,
ہمارے ہیرو تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم ان کے فین ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ہم تو دیکھیں گے کہ نبی کا لباس کیسا، نبی کا ہیئر اسٹائل کیسا، نبی کا چلنے کا انداز کیسا، نبی کا بولنے کا انداز کیسا، نبی کا کھانے کا اسٹائل کیسا، نبی کا سونے کا اسٹائل کیسا، نبی کے کاروبار اور تجارت کا طریقہ کیسا. ہم تو ان کے فین ہیں. ہم تمہارے جیسے ناچنے گانے والوں کے فین ارے بولو نہیں ہے. تو ناموں کے اثرات پڑھتے ہیں. میں بول رہا تھا کہ بھائی تو انشاءاللہ مبین صاحب ہمیں یقین ہے کہ اس مدرسے کا جامعۃ الصالحات، نیک بیٹیاں، نیک عورتیں، صالحات کا مطلب تو انشاءاللہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بیٹیاں آپ کی یہاں پر آئے گی انشاءاللہ ان کی زندگی میں دین آئے گا، ان کی زندگی میں قرآن آئے گا، ان کی زندگی میں اسلام آئے گا، ان کی زندگی میں حضرت فاطمہ کی زندگی آئے گی، ان کی زندگی میں حضرت عائشہ کی باتیں اور حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کی باتیں آئے گی. اس لیے میں آج سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو دنیا پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے. لیکن آپ کے یہاں کورس کتنے سال کا مولانا؟ دیکھیے 2 سال کا مومنہ اور 5 سال کا عالمہ. کیا ہے؟ 5 سال کا عالمہ، 2 سال کا مومنہ. 2 سال کا مومنہ یوں سمجھیے آپ کہ اس میں بنیادی باتیں بچیوں کو سکھا دی جاتی ہے، نماز، روزہ، زکات کے مسائل اور اس کے خود کی زندگی کے ضروری مسائل اور بہت ساری باتیں. اور پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ کی بیٹی مومنہ بنے گی، 5 سال کا کورس کرے گی، عالمہ بنے گی، تو مبین صاحب نے کہا نا کہ شکیل بن حنیف جیسے شیطان اور ڈاکو جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے، او پھول سانگی کی میری بہنوں سنو، اگر تمہاری بیٹیاں 2-5 سال کا یہ کورس کر لے گی، پھر وہ اسکول بھی جائے گی، کالج بھی جائے گی، تو کوئی شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب. زور سے بولو. تو کون اپنی بیٹیوں کو کم از کم اتنا دین سکھائے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ. ماشاء اللہ. اچھا اور سنو اگلی بات، ذرا بیٹھ جاؤ اور سنو اگلی بات. او میرے یارو، میرے استاد تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی. آپ کو معلوم ہے مجھے گرو ہے، فخر ہے کہ میں اس شخص کا شاگرد ہوں. میرے استاد کے لیے کعبہ کھولا جاتا تھا، مجھے فخر ہے اس بات پر. میرے استاد کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی دی جاتی تھی. مجھے فخر ہے کہ میں نے اس شخص کے پیر دبایا ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ میں سفر کیا ہے، اور شاید انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے چنا ہے. تو پھول سانگی والوں سنو، میرے استاد مولانا علی میاں ندوی ایک جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولو. کیا بولتے تھے؟ گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولو. تو آج سے 50 سال پہلے ان کے یہ جملے تھے منصور صاحب. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولیں گے تو جھگڑے کتنے ہوں گے. ابھی ایک مدرسہ چلاؤ تو اتنے کاڑیا کرتے نہیں ہے. ارے بولو نا. ابھی مبین صاحب نے میرا فتویٰ سنا دیا نا، میں نے فتویٰ دیا، میں نے کہا نیک کام کرو، ایک نیکی. نیک کام تم خود نہیں کر سکتے تو جو اچھا کام کر رہا، نیک کام کر رہا، اس کے ساتھ میں ہو جاؤ، ایک نیکی. اور یہ دونوں نہیں کر سکتے، یعنی خود بھی کوئی نیک کام نہیں کر سکتے یا ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، تو صرف گھر کو بیٹھے رہو، کاڑیا مت کرو، 2 نیکی. نہیں سمجھا؟ کیا مت کرو؟ ارے وہ کاڑیا مت کرو، کاریہ کرتا بنو، کاڑیا کرتا. ارے بولو کاریہ کرتا بنو، کاڑیا کرتا مت بنو. اب یہ دیکھو میرے استاد 50 سال پہلے کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدرسہ کھولنا. مولانا اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار مولانا یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. مبین صاحب اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج 50 سال کے بعد مولانا کی بات سمجھ میں آ گئی. مولانا نے کیوں کہا تھا مسلمانوں گلی گلی میں مدرسہ کھولنا؟ کیونکہ یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ بڑی دور کی نگاہ رکھتے ہیں.
انہوں کو سمجھ گیا تھا کہ 50 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھر گھر میں شیطان اپنا مدرسہ کھول دیں گے. تو شیطانوں نے ان کا مدرسہ گھر گھر میں کھول دیا. اچھا شیطانوں کے مدرسے کو 2-3 ایکڑ زمین بھی نہیں لگتی, نہیں سمجھا؟ شیطان کا مدرسہ ادھر دیکھو اتنا سا رہتا, کتنا سا رہتا, اتنا سا, اور کہیں بھی چپک جاتا, بیڈ روم میں, ہال میں, کہیں بھی. اچھا جی تو بولا کیا ہے وہ, بولو زور سے. ٹی وی, جس کے بغیر نہیں رہتی تیری بیوی. کیا ہے وہ شیطانوں کا مدرسہ؟ ارے بولو, ٹی وی, جس کے بغیر نہیں رہتی تیری. تو شیطانوں نے تو گھر گھر میں اپنا مدرسہ کھول دیا. اب مولانا مبین صاحب, منصور صاحب, اب تو گھر گھر کھایا, اب تو شیطانوں نے ہر ہاتھ میں ان کا مدرسہ کھول دیا. نہیں سمجھا آپ؟ مفتی بھی محفوظ نہیں, نہیں سمجھا؟ کون محفوظ نہیں؟ مفتی بھی محفوظ نہیں, امام صاحب بھی. ارے بولو نا. شیطانوں نے یہ اس وقت کا سب سے بڑا دجال ہے, سب سے بڑا فتنہ ہے, جس کی وجہ سے آج میری قوم کی بیٹیاں اور میری قوم کی جوان نسلیں تباہ ہو رہی ہے. اور شیطانوں نے کیا کیا مولانا منصور صاحب؟ ان کو یہ موبائل تھما دیا, اور ان کتوں نے کیا کیا جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے, انہوں نے کیا کیا, 2 GB ڈاٹا فری. نہیں سمجھا؟ 2 GB ڈاٹا فری ہے نا. جب کمپنی نے اعلان کیا, ریلائنس نے 2 GB ڈاٹا, تو میں نے اس وقت میرے چینل سے اعلان کیا 2 GB ڈاٹا مت دے, 2 روٹی آٹا دے. صحیح بتاؤ کیا دے؟ اچھا سچ بتاؤ, آٹا کھائیں گا کہ ڈاٹا کھائیں گا؟ آٹا. مگر وہ آٹا نہیں دیں گے, وہ کیا دیں گے؟ ارے بولو, ڈاٹا. ڈاٹا کیوں دیں گے؟ یہ لے بیٹا 2 GB ڈاٹا, اور رات کے 2 بجے تک کے مر. ابھی حال کیا ہوگا مولانا آپ کو معلوم ہے؟ جب تک کہ رات میں 12 بجے ڈاٹا آتا, معلوم ہے آپ کو؟ 12 بجے ڈاٹا آتا, تو جب تک کہ ڈاٹا نہیں ختم ہوتا بیٹا نہیں سوتا. سمجھ آپ؟ نسلیں تباہ ہو رہی. جب آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ موبائل آیا تھا مولانا, تو ایک کمپنی نے اعلان کیا تھا مبین صاحب, کیا اعلان کیا تھا معلوم؟ کر لو دنیا مٹھی میں. اعلان کیا تھا اس کا؟ کر لو دنیا مٹھی میں. تو میں نے کہا منصور صاحب, وہ اعلان یہ نہیں تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں, ان کمینوں کا اعلان یہ تھا کہ کر لو گناہ مٹھی میں. آج سارے گناہ اس مٹھی میں موجود ہے. پہلے یہ دیکھو, ہمارے باپ کی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو مولانا, یہ ہمارے باپ کی عمر کے جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھو, او جوانوں, پہلے ناچ گانا دیکھنے کے لیے بستیاں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا. صحیح بات ہے, گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا. آج گاؤں تو کیا, گھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں یہ شیطان موجود ہے. www.americakenange.com, سارے ننگے آ جائے گی. آج میری قوم کی بیٹیاں آن لائن ایجوکیشن جب آیا, سنو سنو سنو, بڑی پیاری بات خدا نے ذہن میں ڈال دی. جب کورونا آیا نا, کورونا, تو کیا ہوا؟ اسکول بند, مدرسے بند. کیا؟ اب آدیش کیا آ گیا؟ آن لائن ایجوکیشن ہوں گی. کیوں مانا؟ اب مدرسے میں پہلے اگر موبائل مل گیا تو ایسی دھلائی ہوتی تھی کہ جس کے کوئی حد نہیں پہلے. اور جب آن لائن ایجوکیشن شروع ہوئی تو مدرسے کے ناظم صاحب خود فون کر کے کہتے تھے, بیٹا اچھا اینڈرائیڈ موبائل لینا, کیونکہ شیخ الحدیث صاحب درس دینے والے. بخاری بھی کائے پر ہوگی آن لائن, کیمرے کے سامنے. تب اس کا نتیجہ کیا ہوا مولانا؟ بہت پیاری بات یاد آ گئی کہ کورونا کے دور میں, اسکول سانگی والوں کبھی نہیں سنے ہوگے یہ بات, کورونا کے دور میں کیا ہوا؟ جیسے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے موبائل پر آ گئے اور آن لائن پڑھنے لگے, تو مفتی صاحب اس وقت میں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ مسلمانوں, ہم آن لائن ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے, لیکن میری رائے تھی, مشورہ تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں, اگر تمہاری
हमारी बेटी 3 घंटा मोबाइल के सामने बैठकर ऑनलाइन पढ़ रही है तो मैं चीख चीख कर कहता था कि मां को या बाप को या घर के किसी बड़े को उसके साथ में बिठाना 3 घंटे तक, क्योंकि जिन शैतानों के हाथ में ये इंटरनेट है वो हर 15 मिनट 10 मिनट के बाद में कोई ना कोई गंदी चीजें उस पर डाल लेते हैं। मैंने समझाया, बहुत समझाया मुसलमानों को कि देखो ऑनलाइन पढ़ाओ, हम विरोधी नहीं है, मगर मां बाप का काम है कि बच्चियों के साथ बैठो। नतीजा क्या निकला? अब सुन लो, ये जुमला रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते हमारी बेटियां कहीं और जगह ऑनलाइन हो गई। ये जुमले पर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? कहां मिला गया उसको ये रमेश, ये गणेश, ये प्रकाश? कब इसकी जिंदगी में आया तो पता चला कि ये ऑनलाइन पढ़ रही थी, उसी वक्त में इसका कनेक्शन जुड़ गया। ओ मेरे यारो, कसम अल्लाह की, हम आपसे कहते हैं वो जो आयत पढ़ा ना मैंने, वो आयत समझाकर अब बात को खत्म करूंगा। देखो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ा, कौन सी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह बड़े प्यार से कह रहा है, अल्लाह ईमान वाले मर्दों से, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कह रहा है। क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को नारा जहन्नम की आग से बचाओ, अल्लाह कह रहा है। आज आग जल रही है, शैतानों के जाल बिछे हुए हैं जो दोज़ख तक पहुंचा देंगे। अल्लाह बड़े प्यार से कह रहा है, मेरी बहनों, और मेरी बहनों, फुलसाऊंगी की मेरी प्यारी प्यारी लाडली बहनों, लाडली बहनें है ना 1500 वाली, क्यों भाई? ओ एकनाथ शिंदे की बहनों, क्यों? वो अजीत पवार की बहनों, सुनो, अल्लाह क्या कर रहा है कि अपने आप को भी और अपनी बच्चों को भी, अपनी औलाद को भी, अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अब जहन्नम की आग से बचाने का जरिया क्या होगा कि अपने अपने गांव में, अगर आसपास का कोई गांव वाला होगा ना, तो मैं कह रहा हूं कि अपने गांव में जाना, और मदरसा नहीं होगा तो मदरसा खोलने की मेहनत करना। अगर तू वहां का सरपंच है, तू लीडर है, तू नेता है, तू कारपोरेटर है, तू काउंसिलर है, तू नगर सेवक है, तो अपने गांव के किसी आलिम को पकड़ना और हिम्मत देना कि मौलाना साहब अपने गांव में बेटियों का मदरसा नहीं है, खोलो, मैं तुमको मदद करने को तैयार हूं। सुनो, मुझे खुशी है कि मौलाना अय्यूब साहब ना, मौलाना अय्यूब साहब को हमारे शमशेर खान और कुछ लोगों ने पकड़े, मुझे सबका नाम नहीं मालूम। मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं तमाम फूल साउंगी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मौलाना अय्यूब कासमी को खड़े किया। हाँ, बहुत अच्छी याद दिलाए। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मौलाना अय्यूब आजाद साहब का साथ दिया और यहां पर जामियतुस सालिहात खोला। ओ मुसलमानों, सुनो सुनो सुनो, जिस जगह मदरसे खुलते हैं ना, जिस जमीन पर, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में मदरसे खुलते हैं, जब वहां पर दीन की, कुरान की, इस्लाम की तालीम होती है तो पूरे इलाके में अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती है। आज आप देखो मौलाना क्या हो रहा है, मौलाना ये हमारी बेटियां यहां पर है, शैतान कैसे जाल डाल रहे इन पर, इनको लालच देते शैतान क्या कहते हैं, तुमको 25,000 रुपए बचत गट के कर्ज दिए जाएंगे। बचत गट क्या मालूम तुम्हारे वहां है कि नहीं है यहां पर? हाँ, अच्छा क्या करते हो? औरतों को देते 25,000 50,000। अरे भैया, तुमको तुम्हारा पैसा वापस चाहिए ना, हाँ, तो उसके दूल्हे को देना। नहीं समझा? एकदम सिंपल सादी बात। तो उसकी औरत को क्यों दे रहा? अरे जो कमा रहा उसको दे। अब ये औरत तो कमाती नहीं और उनको तुम 50,000 दे रहे, तो जरा अपनी अकल लड़ाओ कि इन शैतानों के प्लान क्या है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये औरंगाबाद कन्नड़ के इलाके में गया, मराठवाड़ा के इलाके में गया, मुफ्ती साहब ये माइक पर कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इन कुत्तों ने बचत गट के जरिए से कई औरतों को गलत रास्तों पर लेकर चले गए हैं। मेरे आंखों में आंसू आ रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलना। और बेगैरत मुसलमान मर्द नहीं समझता कि उसकी बीवी 50,000 कर्जा ला रही, तो वो कमीना है कौन जो उसको 50,000 दे। याद रखो, ये बहुत काम की बात कर रहा हूं। फिर क्या होता है, सुनो, ये भी बात सुन लो, क्या होता मौलाना, क्या होता?
50,000 औरत से भरे नहीं जाते। अल्लाह का शुक्र है, मैं सबकी मिसाल नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान का जिम्मेदार में से शुमार होता है। मेरे मालिक ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूं। कई औरतें इस बचत गट के जरिए से गलत रास्तों पर चली गई। 50,000 भरे नहीं जा रहे, 1 लाख ले लिया, भरे नहीं जा रहे। फिर उनमें का एक कुत्ता रहता है जो उसको अलग रास्ता दिखाता है। मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, मर्द खुश होता मौलाना, ओ बहन ने 50 लाई, बीवी ने 25-50 लाई, मां ने 25-50 लाई, घर में 1.5-2 लाख आ गए, खुश हो रहे। अरे वो ब्याज का है, ब्याज का। और ब्याज कितनी खतरनाक चीज है, सुन लो मेरी बहनों, मेरी बहनों, ब्याज कितनी खतरनाक चीज है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे और आपके रब ने, परवरदिगार ने कहा है कि जो सूदी लेन देन में पड़ेगा, ये मेरे जुमले नहीं, बुरा लगे तो अल्लाह मियां को बोलना। क्यों? अल्लाह कहता है कि जो सूदी लेन देन में पड़ेगा, जो ब्याज के लेने देने में पड़ेगा, अल्लाह कहता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अब बताओ, अल्लाह से जंग में कारून जीता गया? अरे बोलो ना। अल्लाह से जंग में फिरौन जीता गया? अल्लाह से जंग में शद्दाद जीता गया? अरे बोलो। अल्लाह से जंग में नमरूद जीता गया? तो तू तो फुल समझ गया है। तू कहा गया? तेरे पास तो ताजमहल भी नहीं है, और अच्छे चले गए। क्यों? वो किसी ने कहा ना, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है। मैं अच्छा कव्वाल भी बोला, लेकिन बगैर बाजे का, क्योंकि जिसने बजाया बाजा, अल्लाह इतना बजाएगा। तो कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती, बोलो, आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा, आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। तो अच्छे चले गए। क्यों? अपनी औरतों को बचत गट में मत डालो मौलाना। मेरे मौला का करम है, 10-11 साल से मेरे शहर में, मेरे मुस्लिम इलाके में बचत गट वाले को घुसने भी नहीं दिया। नहीं समझे आप? 11 साल पुरानी बात है, 11-12 साल पुरानी बात है। और जिन औरतों ने लिए तो उनको बोल दिया देना ही मत, मैं देखता नहीं समझा। अच्छा, वो क्या करते, कैसे औरतों को ले जाते बचत गट वाले? अरे भैया, औरतों ने कर्ज ली ना, तो अब उनसे हिसाब किताब लेने औरता भेजना नहीं, एक चंगने आता। नहीं समझा? चंगने समझते? खानदेशी में, मैं खानदेशी हूं। तो वो मर्द आता और मर्द के साथ में मीटिंग होती। क्यों? और शर्म नहीं आती मुसलमानों कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन एक गैर मर्द के साथ में रूम में मीटिंग कर रही है। ओ मेरे यारों, बचाओ अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को, अपनी माँ बहनों को। और मैं आज से कह रहा हूं कि अब हर गांव में जो कहीं कभी आसपास के गांव वाला आया होगा, मैं मुफ्ती हारून आपसे अपील करता हूं कि अपने अपने इलाके में बेटियों के मदरसे खोलो। हम क्या कर रहे हैं मौलाना? दुनिया पढ़ाने के चक्कर में इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्कूलों में भेज रहे हैं। मना नहीं कर रहे हम, सुनो अभी ये जुमला, बड़ी बात कर रहा हूं, हम मना नहीं कर रहे। क्यों? इंग्लिश पढ़ा, हम मना नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये बच्चे खुद बोलेंगे स्कूलों में क्या पढ़ रहे, जिन पर तुम लाखों रुपए लगा रहे ना स्कूलों में, ये स्कूलों में क्या पढ़ रहे, देखो बच्चे खुद बोलेंगे। प्यारे बच्चों इधर देखो,
प्यारे बच्चों इधर देखो, जोर से बोलना, ए फॉर, नहीं जोर से आवाज नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे स्कूल में, लाखों रुपए तुम उन पे खर्च कर रहे हो और पढ़ रहे क्या ये? अरे बोलो, सी फॉर, जोर से, सी फॉर कैट, कैट यानी बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग यानी प्रैक्टिकल है ये, मैं आपको इनकी जबान से सुना रहा। अरे हम क्या बोल रहे हैं, कुत्ते बिल्ले पढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनको ए से एप्पल पढ़ रहे ना वो, तो इधर देखो, इधर देखो, हम कहते ए फॉर एप्पल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बॉल, बी फॉर बिस्मिल्लाह। हम कहते ए से एप्पल आता ना, तो ए से अल्लाह भी आता है ना। हम कहते बी से बॉल पढ़ रहा ना, तो बी से बिस्मिल्लाह भी आता ना। हम कहते हैं कि बस तुम्हारे बच्चों को दीन बुनियाद में इतना दे दो कि कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब ना हो। तो सुनो, अब मैं आपसे आखिर में कह रहा हूं कि जामियतुस सालिहात निस्वा लिल बनात, ये कौन सा इलाका मानो शमशेर भाई, ये इलाका कौन सा है? जैद नगर, हिदायत नगर। अरे वाह वाह वाह, नाम भी बड़ा प्यारा है, हिदायत नगर। तो अल्लाह हिदायत नगर वालों को हिदायत दे कि यहां पर बेटियों के ईमान का, इस्लाम का किला हम तामीर करेंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह। क्यों? अच्छा देखो, अभी हर आदमी प्लॉट ले रहा कि नहीं ले रहा? ले रहा। क्यों? आगे के हिसाब से। क्यों? आगे के हिसाब से। मैं औरंगाबाद में पढ़ता था, मौलाना मंसूर खान साहब, मैं औरंगाबाद में पढ़ता था। औरंगाबाद का एक बड़ा पेपर है, औरंगाबाद का एक बड़ा पेपर है। तो वहां के मालिक ने बंगला बनाया, वहां के मालिक ने, मुबीन साहब बंगला बनाया। मैं छोटा था जब, औरंगाबाद में 14 साल का था मैं, 14 या 15 साल का। अब मालिक ने बंगला बनाया, पेपर के मालिक ने, बड़ा शानदार बंगला। जुमा के दिन मदरसे के बच्चों को कुरान खानी के लिए बुलाया गया। हमने कुरान खानी किए, हमने कुरान खानी किए। अब कुरान पढ़ने के बाद हमारे मौलाना रियाजुद्दीन साहब नदवी ने हमसे कहा, प्यारे बच्चों, बंगला इतना शानदार, मौलाना मंसूर साहब, मुबीन साहब, के चौथे ताल तक के बेडरूम तक के कार जाएंगी। क्या जाएंगी? कार। अब हम भी छोटे छोटे, 94 की बात है वो, 1994 की। तो अब हमारे उस्ताद ने कहा कि प्यारे बच्चों, अभी तुमने जो कुरान पढ़े और दुआ किए ये बंगले के लिए, ये बंगले के मालिक साहब आइंदा कल जुमा का दिन था, शनिचर को इस बंगले में शिफ्ट होंगे। क्या कहा? शनिचर को सेठ साहब इस बंगले में शिफ्ट होंगे। सुनो, सेठ साहब का पेपर है औरंगाबाद में, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, उस पेपर का नाम सेठ साहब का पेपर है। हमारे उस्ताद ने कहा कि ये शानदार बंगले के मालिक कल शनिचर से यहां रहने आएंगे, इसलिए जुम्मा के दिन हम बच्चों ने वहां पर कुरान पढ़े। उनके ही पेपर में, शनिचर को उनके ही पेपर में पहली खबर यह बनी कि सेठ साहब बंगले में नहीं, कब्रिस्तान में शिफ्ट हो गए। कहा हो गए? कल जो तन के चलते थे, है ना भाई, मौत का कोई भरोसा नहीं। क्यों? मुगल बादशाह चले गए, हुमायूं चला गया, अकबर चला गया, औरंगजेब चले गए। क्यों? बड़े बड़े बादशाह चले गए। आज आप देखो, फूल साउंगी वालों, ताजमहल से करोड़ों रुपए आते, तुमको मिल रहे क्या? अरे बोलो ना, अरे तुम्हारे अब्बा ने छोड़े ना वो। अरे भाई, अपने बाप दादा गए ना, अपने बाप दादा गए, लेकिन अपनों को मिल रहे क्या ताजमहल से कोई पैसे? नहीं। मैं आगरा में बयान करने गया, जैसे मैं ताजमहल घूमने गया तो मुझे प्रेस वालों ने पकड़ लिए कि वो उस वक्त चल रहा था ताजमहल के बारे में, थोड़े लफड़े चल रहे थे। तो मुझसे प्रेस वालों ने कहा कि ताजमहल के बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने डायरेक्ट बोला, गिरा दो। मेरे बाप का क्या करो, गिरा दो, क्योंकि हमको तो कुछ मिल रहा नहीं होगा। लेकिन ताजमहल को गिराएंगे नहीं, ये चोर। क्यों नहीं गिराएंगे? करोड़ों खा रहे, बीवी के मकबरे से करोड़ों मिल रहे, गोल गुंबद से, अरे बोलो,
करोड़ों मिल रहे, क्यों? हाँ, करोड़ों मिल रहे, क्यों? और अब तो वो आपने कहावत सुने ना, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, सुने लेकिन है ना? अब बोखिया के ख्वाब में वक़्फ़ है, क्या है? अरे बोलो। तो मैंने भी कल नागपुर में कहा, परसों मैंने भी कहा कि वक़्फ़ ये मेरा जुमला हुकूमत तक के जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मुझसे बड़ा प्यार करती है। यहां पर भी सीआईडी मौजूद है, क्योंकि जैसे ही किसी भी गांव में पता चलता है कि मुफ्ती हारून जा रहा, समझ गए इशारा, आगे सब आ जाते। तो सुन लो, हुकूमत से भी मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ का मालिक हम भी नहीं है, क्यों? हम तो सिर्फ मुतवल्ली, ट्रस्टी, चौकीदार और नौकर और खादिम हैं। वक्फ का मालिक हमारी शरीयत ये कहती है कि मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान, दरगाह, इन तमाम का मालिक मदरसा, वक्फ जो चीज हो जाती है उसका मालिक कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। क्यों? और मैंने कहा मौलाना, नागपुर में बड़ा अजीब जुमला, मैंने कहा हुकूमत वालों सुन लो, हम इतने खतरनाक लोग हैं कि सग्गा भाई अगर एक बिल्ला घुस गया तो उसको छोड़ते नहीं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नहीं समझा? अरे बोल रहा है, सग्गा भाई अगर घुस गया एक बिल्ला तो छोड़ देगा अपन उसको, इतने तो अच्छे हैं अपन। एक बिल्ला, एक बालिश अगर भेन घुस गई इधर तो छोड़ देगा उसको। हाई कोर्ट तक के जाते, कहां तक के जाते? हाई कोर्ट। तो मैंने कहा अरे हम अपनी नहीं छोड़ते रहे सग्गे भाई को, तो हम, ये तो अल्लाह की है, वक़्फ़ का मालिक कौन? अल्लाह। तो हमने कहा कि अल्लाह की जायदाद पर किसी खबीस का 1 इंच भी कब्जा हम होने, जोर से बोला, मदरसा अल्लाह का, मस्जिद, जोर से बोलो, मस्जिद अल्लाह की, खानकाहें अल्लाह की। ये जितनी वक्फ की जमीनें किसकी है? अल्लाह की। अब इन चोरों ने क्या किया? पटरियां बेच दिए, रेलवे, अरे बोलो, बेच दिए, ट्रेना, अब बेचने को कुछ बचे है नहीं, तो अब इनकी नजर कहां है? अपनी जायदाद पर। किसकी? तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हर गांव में मदरसा होगा। तो अब मुझे बताओ, देखो सुनो, अब आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे लंबा सफर करना है, कल मेरा गुजरात में बयान है। अब आखिरी बात मैं कर रहा हूं। ओ मुसलमानों, प्यारे नबी ने क्या कहा? मौलाना बड़ी अहम बात कर रहा हूं। प्यारे नबी ने क्या कहा? अक्लमंद वो है, होशियार वो है, चालाक वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। क्या कहा? अरे बोलो। प्यारे नबी ने फरमाया अक्लमंद वो है, होशियार वो है, चालाक वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। यहां तो बंगला बनाएगा, भरोसा नहीं कि उसमें रहेगा या नहीं रहेगा, भरोसा नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, मुकम्मल होने से पहले तो दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि बुलावा आ जाएगा। जब मौत आती है तो कुरान कहता है कि जब उसका वक्त हो जाता है तो 1 सेकंड पहले नहीं आती और 1 सेकंड बाद में नहीं आती। शद्दाद ने जन्नत बनाया था, जैसी सुना था जन्नत के बारे में, शद्दाद ने वैसी बना लिया था। शद्दाद ने सुना कि जन्नत में सोने चांदी की ईंटें होगी तो उसने भी सोने चांदी की ईंटें लगाया। शद्दाद ने सुना कि दूध की शहद की नहर बहेगी तो दूध की शहद की नहरें भी बहाया। जैसा सुनता था वैसी जन्नत बनाने की पूरी तैयारी किया, कोशिश कर लिया। जब जन्नत बन गई तो अब उसका ओपनिंग होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था। पूरी फौज के साथ उद्घाटन करने जा रहा था, पूरी फौज के साथ गाते बजाते खुशियों के साथ जन्नत का उद्घाटन करने जा रहा था कि रास्ते में एक शख्स आया और उसने शद्दाद के घोड़े की लगाम पकड़ ली। नया शख्स था, समझ में नहीं आ रहा कौन है, क्यों? मोहल्ले का भी नहीं दिख रहा, तो अब घोड़े की लगाम पकड़ लिया और कहने लगा मैं मलिकुल मौत हूं, लेने आया हूं, यमराज हूं। कहीं रास्ता है? अब शद्दाद कहता है ओ मेरे भाई, बड़ी मेहनतों से जन्नत बनाया, थोड़ा सा रहने तो दे। ये कहता है नहीं, वक्त का इंतजार कर रहा हूं, जैसी हो जाएगी खींच लूंगा। फिर कहता है शद्दाद बड़े आजिजी से कहता है ओ मेरे भाई, जन्नत बड़ी मेहनत से बनाया, जरा घुसकर झांकने तो दे। ये कहता है नहीं नहीं, बात चल ही रही थी कि शद्दाद
धड़ाम से घोड़े पर से गिरा और रूह कब्ज कर ली गई। और मेरे यारो, प्यारे नबी ने क्या कहा? अक्लमंद वो है, होशियार वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अब फूल सौंगी वालों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, मरने की तैयारी कैसे होगी? 25-30 जोड़े सिलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा सफर है। अरे बोलो, अरे लंबा सफर है ना? क्यों 25-30 जोड़े? नहीं, सुन लो, ये देखो मुफ्ती हारून शेरवानी पहन के आया, बड़ी कीमती शेरवानी, लेकिन जब मुफ्ती हारून का दम निकल जाएगा ना तो शेरवानी उतार ली जाएगी। क्यों? मैं एक जनाजे में गया मौलाना, उस आदमी ने 50 करोड़ की जायदाद बच्चों को छोड़कर आया। अब जब नहलाने का वक्त आया, कपड़े उतारने लगे तो कपड़े में 500 की नोट थी, एक 500 की नोट थी। तो मैंने थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए कह दिया, यार 50 करोड़ तेरे अब्बा छोड़कर गए, 500 तो रहने दे जेब में। नहीं समझा? कितने रहने? नहीं मुफ्ती साहब, 500 तो क्या 50 भी जेब में नहीं रहेंगे। और अब कफन भी जो सबसे हल्का कपड़ा है मार्केट का, कफन उसका होगा। अब ये नहीं होगा कि मुफ्ती साहब 11,000 की शेरवानी पहनते थे, बेचारों को लिनन का कफन तो दो। क्यों भाई? खत्म। बड़ी बेवफा दुनिया है और मेरी बहनों, बड़ी बेवफा दुनिया है। इसलिए प्यारे नबी ने कहा कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की, अच्छा मरने की तैयारी कैसे होगी? तो सुनो, दुनिया में कुछ ऐसे नेक काम कर जाओ कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहे। मिसाल के तौर पर कोई हिंदू भाइयों की भी बस्ती अगर है, देखो इस्लाम क्या बोलता है, कोई हिंदू भाई की बस्ती है, रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, बौद्ध, ब्राह्मण, दलित भाई कोई भी रहता है, अगर उस बस्ती में पानी का इंतजाम नहीं है, वहां तुम बोरिंग खुदवा दो, कुआं खुदवा दो, अगर हिंदू भाई भी उससे पानी पिएगे तो जब तक कि वो बोरिंग में पानी चलता रहेगा तुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। क्यों? नेक काम इसे कहते हैं, ऐसे काम होते हैं। मर गया इंसान, ये जुमला सुन लो, मर गया नमाज खत्म, अब नमाज नहीं पढ़ सकता। मर गया रोजा, अरे बोलो ना, नहीं रख सकता। मर गया हज को, नेकी कमाने के जितने तरीके थे सब मरने पर खत्म। लेकिन प्यारे नबी ने एक योजना बताई, योजना समझना थी ना, योजना जल्दी समझ में आई। प्यारे नबी ने योजना बताई, क्या बताई? प्यारे नबी ने कहा कि अगर मरने से पहले कुछ ऐसे काम किया कि लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे तो मरने के बाद भी तेरे अकाउंट में तुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। क्यों? हजरत उस्मान गनी का नाम सुना होगा। क्यों? तीसरे खलीफा उस्मान गनी। आज भी आप ताज्जुब करेंगे, 1400 साल दुनिया से जाने को हो गए, आज भी मदीना में उनके नाम का बैंक में अकाउंट है। और जितना उन्होंने छोड़ कर गए थे अल्लाह के नाम पर, वो तमाम खजूरों के बाग का पैसा आता है और मस्जिद में खर्च होता है। रोजेदारों की खजूरें जो इफ्तार के लिए आती है उसमें खर्च होता है। तो अब हजरत उस्मान दुनिया से चले गए, मगर उनको सवाब, अरे बोलो, इसको ही तो बोलते वक़्फ़। अब तू मर गया तो एक बात सुन लो, देखो बड़ी प्यारी बात करा, ये भरोसे पर मत रहना कि तू मर गए तो तेरे बाद तेरे बच्चे 2-5 लाख तेरे नाम पर देंगे। अरे तेरे को पानी में ले रहे भी हो, सही है ना? तो जो करना है कब कर लो, हयाती में कर लो, खुद की जिंदगी में कर लो। मस्जिद बना दिए, अब जब तक के मस्जिद में नमाज होती रहेगी, और मेरी बहनों अगर तुमने मस्जिद में पैसा दिया, जब तक नमाज होती रहेगी तुमको सवाब मिलता रहेगा। तुमने मदरसा बना दिया, जब तक के बेटियां कुरान पढ़ती रहेगी, मदरसे में पढ़ती रहेगी, तुम मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, लेकिन उसका सवाब तुमको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपसे कहता हूं, देखो मुफ्ती हारून इतना खुददार है, वो माइक लाओ जरा, मुफ्ती हारून इतना खुददार है। सुन लो मेरे बारे में, मेरे शहर जलगांव में जाना, जलगांव में मेरे बारे में मालूम करना। मैं इतना खुददार हूं कि मुफ्ती हारून 25 साल में हमारे शहर का 25 साल में, ये चालू कर बेटा, 25 साल में
मुफ्ती हारून के शहर का कोई करोड़पति, कोई मालदार ये नहीं कह सकता कि मुफ्ती हारून एक मर्तबा मेरे बंगले पर आए थे और मैंने उनको 10-20 हजार दिया था। मशहूर है मेरे बारे में, इसलिए मैं टन टन बोलता, समझ रहे आप? खन खन सिक्का क्या करता। लेकिन सुनो, हमने कभी अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन ये मुफ्ती हारून रोजाना हिंदुस्तान के किसी गांव या किसी शहर में जाता है और अल्लाह के दीन के लिए भीख मांगता है। किसके लिए? अरे भाई मैं आया, अभी भीख मांग रहा हूं, फिर मैं चला जाऊंगा, इसमें मेरा क्या फायदा? मेरा फायदा है, मुझे कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे बोलो ना, कमीशन। जिसको होना कमीशन, हमारे साथ में लग जाओ। क्यों? आजकल बहुत बोलते ना कमीशन, कमीशन मिलेगा। ये जो मैं आज भीख मांग रहा हूं ना फूल छाऊंगी वालों तुमसे, कल कयामत के दिन अल्लाह याद दिलाएगा, ओ मेरे हारून तुझे याद है तू फूल छाऊंगी गया था और वहां तूने अल्लाह के दीन के लिए, बेटियों के मदरसे के लिए भीख मांगा था। तेरा वो काम मुझे बहुत पसंद आया। तेरे भीख मांगने से जमीन ले ली गई थी, तेरे भीख मांगने से मदरसा बन गया था, वो मदरसा चलता रहा। ये ले हारून, तुझे आज इसका ये सवाब में दे रहा हूं, तो तब मुझे मिलेगा अल्लाह के यहां कमीशन। समझ रहे आप? तो मैं आपसे कहता हूं, बहनों से भी कह रहा हूं और मर्दों से भी कह रहा हूं, अब देखो जुमला सुन लो, दुआ होंगी इसके बाद, बच्चों को इनाम, दुआ कभी नहीं छोड़ना। पहले ये जुमला सुन लो, अल्लाह का मामला अलग है मौलाना, अल्लाह का मामला अलग है, इंसान का मामला उल्टा है। इंसान से मांगो तो उसको गुस्सा आता इंसान को, और अल्लाह का मामला यह है, अल्लाह से नहीं मांगो तो अल्लाह को गुस्सा आता। बहुत कमाल की शान है मेरे मौला की। अगर हम बिन मांगे चले गए ना तो उसको गुस्सा आएगा, और इंसान का मामला उल्टा, इंसान से मांगो तो गुस्सा आता। तो मैं अब आपसे कह रहा हूं कि देखो, अगर मरने के बाद भी नेकियां कमाना चाहते हो तो जामियातुस सालिहात की 6600 स्क्वायर फीट जमीन अल्हम्दुलिल्लाह ले ली गई, और जमीन वालों को तकरीबन 3 लाख रुपए बयाना दे दिया गया, और पूरी जमीन है तकरीबन 23 लाख की। बराबर? मेमोरी बहुत खतरनाक है मौलाना मेरी, एक मरतबा देख लिया खत्म। पूरी जमीन कितने की है? 23 लाख की। 3 लाख दे दिए, जमीन के 20 लाख देना बाकी है। फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह, अच्छा ये भी सुन लो, बनाने वाली जात, करने और कराने वाली जात, जोर से बोलो फूल छाऊंगी वालों किसके है? देखो जरा ईमान भी ताजा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह बोल देना, अल्लाह अल्लाह बोलने में शर्म मत करना, गाने गाने में नहीं शर्माते, चुगलिया करने में नहीं शर्माते, टर्रे पने करने में, अरे बोलो ना, नहीं शर्माते, बोकड़ाने में, तो अल्लाह अल्लाह बोलने में क्या शर्म? तो थोड़ा बोल देना जोर से बोलना, जिंदगी किसके हाथ? हाथ उठा के बोलो, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। ये हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बारिश को कौन बरसाता है? अल्लाह। ये जमीन, ये आसमान का पूरा सिस्टम किसके हाथ में है? तो जब सब अल्लाह के हाथ में, तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना, बोलो। मामा जी का ठिल्लू, कुछ नहीं इनके हाथ में। तो चलो नेकियां कमा लो। और अब मैं आपसे भीख मांग रहा हूं फूल छाऊंगी वालों, पहली मर्तबा आपके गांव में आया, लाज रख लेना, इज्जत रख लेना, किसी आलिम किसी मुफ्ती की इज्जत रख लेना, और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन मैं आपको बताता हूं कि 23 लाख जमीन के है, और जो इमारत बनेगी ना उस पर, तो तकरीबन 80 लाख की इमारत बनेगी। और ये 1 करोड़ भी कोई बड़ी बात? अरे आदमी मौलाना आजकल अपना खुद का बंगला करोड़ रुपए से कम नहीं बन रहा, समझ रहे आप? अभी खुद मेरा जलगांव में बंगला बन रहा है 1 करोड़ 30 लाख का, यानी छोटा सा भी बंगला बनाओ तो 1 करोड़ 30 लाख का बन रहा है। तो अब 1 करोड़ में अगर पूरा मदरसा जमीन से लेकर बिल्डिंग तक खड़े हो जाता है, तो ये हमारी नस्लों के लिए चलेगा। हम मर जाएंगे, मुफ्ती हारून मर जाएगा, आप मर जाएंगे, लेकिन मदरसा कयामत तक खड़े रहेगा, और जब तक कि उसमें बेटियां कुरान पढ़ती रहेगी, उसका सवाब देने वालों को, अरे बोलो, मिलता रहेगा। तो चलो, सबसे पहले मेरे हाथ में ये चिट्ठी आ गई है मुफ्ती उमर साहब इशाती की तरफ से,
2000 रुपये। माशाल्लाह, लिखते जाओ जल्दी फटाफट। अच्छा देखिए, अब दुआ होगी, फटाफट लिखाओ। अच्छा एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, बड़ी प्यारी बात सुना रहा हूं। देखो, ताकत से ज्यादा नहीं देना, मैं खुद कह रहा आपसे। रुको मोहम्मद राज, बैठो, देखो, ताकत से ज्यादा, देखो जुमला मुफ्ती साहब, मैं कितनी प्यारी बात समझा रहा हूं। मुबीन साहब इधर ध्यान दो, ताकत से ज्यादा नहीं देना। हिंदुस्तान का मैं पहला मुफ्ती ऐसा जो ये बोलता, वरना लोग जबरदस्ती निकालते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं बोलता ताकत से ज्यादा नहीं देना। उसकी वजह है, एक जगह वो खून देते ना, खून कैंप था, कैंप, तो मैं नेता भी हूं, तो मुझे रिबन काटने के लिए, उसको ओपनिंग करने के लिए बुलाया गया। अब मैं वहां पर गया, मुफ्ती साहब, मैंने खून देने की फजीलत बयान किया कि तुम अगर खून दोगे और किसी की जान बच गई तो ये मिलेगा, अल्लाह ऐसा खुश होगा, जान बचाने का है सवाब। अब मैंने अच्छी तकरीर करा तो लोग जज्बात में आ गए, जितने बैठे थे सब खून देने के लिए तैयार हो गए। उसमें एक दुबले आदमी ने 1 बोतल खून दिया, बाद में उसको 3 चलाना पड़ी। समझा? तो मैं खुद कहता ताकत से ज्यादा नहीं देना। लेकिन अगला जुमला सुन लो, बेटा तेरी ताकत कितनी है सीआईडी को नहीं मालूम, इनकम टैक्स वालों को नहीं मालूम, हुकूमत को नहीं मालूम, मगर हाँ, तो अब अगर 50,000 देने की ताकत है और 5,000 में तनख्वाह देगा तो कोई अल्लाह तुझे 5,000 के लायक ना कर दे, क्योंकि जो मालिक देना जानता है वो मालिक छीनना भी जानता है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने गुजरात में देखा मौलाना, गुजरात में जब 2002 का फसाद हुआ, मुफ्ती अब्बास साहब, अरे अब तुम किधर छुपे थे? 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ, हम जमीयत की तरफ से मदद करने के लिए गए मुफ्ती साहब, तो हमने देखा कि जिनकी फैक्ट्रियां जलाई गई थी, करोड़पति अरबपति लोग भिखारियों की तरह खाना हाथ में लेते थे। मेरे यारो, अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अभी रमजान आएगा, सब ज़कात देंगे, अरे खुश होना मंसूर साहब, अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया मुबीन साहब तो खुश होना कि मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने देने वाला बनाया, वरना तू भिखारी बनाकर मस्जिद के दरवाजे पर कटोरा हाथ में देकर खड़ा कर सकता था। लोग अजीब है, देने वाला बनाया तो खुश होना, क्या होना? एक आदमी का, मेरे दोस्त का फैक्ट्री, 6 फैक्ट्री उसकी जलगांव में, उसका मुझे रमजान में फोन आया, सुनो अजीब फोन आया उसका, कहा कि मुफ्ती साहब मेरे पास में इतना है, इतना है, इतना है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब मुझे बोला, मुझे ज़कात के बारे में पूछना है कि कितनी ज़कात होंगी इस पर। तो मैंने कहा यार बहुत ज्यादा है, तू 1 घंटे के बाद में फोन लगा, मैं हिसाब करके बोलता। अब 1 घंटे के बाद में उसका मालदार का फोन आया, तो मैंने कहा कि देख भाई, जो तूने बताया उसके हिसाब से तेरी ज़कात हो रही 23 लाख रुपए। कितनी हो रही? 23 लाख। तो मौलाना जैसे मैंने उसको 23 लाख बोला तो उधर से उसका सवाल जवाब क्या था? अरे बाप रे। क्या था? अरे बाप रे। तो मैंने कहा अरे बाप रे, अरे मैंने कहा कमबख्त 23 लाख निकल रही, इतनी निकल रही, इसका मतलब कितना दिया? क्योंकि ज़कात तो 1000 पर, अरे बोलो कितने 1000 पर? अरे बोलो ना, नहीं मालूम। अच्छा 100 पर कितने? 2.5 रुपए। तो ज़कात कितनी कम है? मिसाल के तौर पर मैं आपको 10,000 दूं, कितने दूं? 10,000। और थोड़ी देर के बाद में मैं आपसे कहूं कि जरा एक काम करो ना, जरा थोड़ा सा 250 रुपए दो ना, काम है। मैं क्या बोलूं आपसे? 10,000 मैंने आपको दिया और आपसे बाद में मंगला मैं कि मुझे कितने दो? 250 दो। अब वो 10,000 मेरी है। अब मैंने आपसे थोड़ी देर के बाद में क्या मांगा? 250। तो अगर आप कहने लगे नहीं दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? एक काम कर ला बेटा, वो 10 बिला साला तू इसके लायक नहीं। अरे अल्लाह दे रहा और उसमें से 2.5% मांग रहा, वो भी अपने लिए नहीं, ज़कात के जरिए से हिंदुस्तान के लाखों मदरसे अल्लाह चलाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसों को मुसलमान ही बनाते हैं, मुसलमान ही चलाते हैं। तो चलो अब ऐलान करते जाओ, सबसे पहले कौन खुशनसीब खड़े रहेगा? अपनी ताकत के हिसाब से, हर आदमी लिखाएगा अपनी ताकत के हिसाब से लिखाओ, जल्दी खड़े जाओ, खड़े रहो बिंदास। हाँ कितने? बाबर खान 11। बाबर खान साहब की जानिब से 11,000 रुपए लिखो मौलाना फटाफट। जज़ाकल्लाह। मरहूम इब्राहिम साहब टेलर, बदस्त जावेद शेख इब्राहिम, देखो ये अपने अगर रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं तो उनको सवाब
ऐसे पहुंचाया जाता है। उनका 40वां कर लेने से उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि खारा तू नहीं समझा, खारा तू। तो अब मरहूम इब्राहिम के सवाब के इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। लीजिए मौलाना, माशा अल्लाह। चलिए लिखाते जाओ, बोलो 5,000 अपने तरफ से। हाँ, एक मिनट, क्या नाम 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 रफीक नवाब साहब की जानिब से बोरिंग का खर्चा, माशा अल्लाह। लिखो लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। लिखा दे जाओ। मुझे लगे कि मैं किसी गांव में गया था और मैं वहां कुछ अल्लाह के दीन का काम करके आया। अब्दुल खलील साहब मच्छी वाले 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। लिखो भाई। इबादुल्लाह खान साहब कितने? 11,000 रुपये। लिखो जल्दी। इबादुल्लाह खान साहब 11,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। ये मुफ्ती नासिर साहब एवत महल 1,000 रुपये। हमारे मुफ्ती और आलिम का 1,000 भी 1 लाख से ज्यादा है, माशाल्लाह। लिखिए, चले पूरा मजमा लिखाएगा आज इंशाल्लाह, बतलाते रहे भाई, बतलाते अपनी ताकत के हिसाब से। और अभी नहीं देना आपको, रमजान तक देना है। कब तक देना है? अरे बोलो, रमजान तक। चलिए लिखाइए और फटाफट। अब्दुल वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह बेहतरीन बदला दे। फटाफट लिखाओ, बतला है भाई, बदलाओ भाई फटाफट। और बतला है भाई। शर्माओ मत। मस्तूरात भी उधर से। अच्छा, औरतों को भी जन्नत पे जाना है ना, क्योंकि अपन अकेले वहां पर क्या करेंगे? तो औरतों में भी कोई चले जाए वहां पर जल्दी से। औरतों में कोई जिम्मेदार है मौलाना वहां पर? औरतों में कौन जिम्मेदार है आपके? किसको जिम्मेदारी दी आपने? मौलाना अय्यूब साहब कि अहलिया, उनकी बीवी से मैं गुजारिश करूंगा कि औरतें वहां पर देना चाह रही है, कुछ औरतें लिखाना चाह रही है, बाद में देगी। कुछ औरतें नकद देना चाह रही है, कुछ औरतें अंगूठी देना चाह रही है, कुछ औरतें नथनी और कान की बालियां देना चाह रही है। ले लो उनसे वो, माशाल्लाह। वसीउद्दीन नवाब साहब की तरफ से 20,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नासिर भाई 20,000। नासिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नासिर भाई खड़े रहो जरा, खड़े रहो। देखो अल्लाह के यहाँ इसकी भी अहमियत है। नासिर भाई 20,000 रुपये। कौन? बब्बू खान साहब 1,000 रुपये कैश, अल्लाह कबूल करे ये कैश। हाफिज मुबीन साहब यही के 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। लिखा दे जाओ फटाफट, अभी 2 मिनट में दुआ हो जाएगी हमारी। दुआ जल्दी जल्दी बतला, जल्दी बताओ फौरन। हर आदमी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने आ गया हो ना बाबा, आ गया हो ना, आ गया हो ना, जरा आ गया हो ना। मौलाना कोई जाओ ना यार वहां पर, बीच में नौजवान बच्चा खड़े रहो, वहां से आवाज देते रहो। वो 11,000 बोलो। हाँ, वो चाचा 11 बोले। कौन है? कलीम भाई पठान। कितने? 11,000 रुपए लिखे। कलीम पठान साहब 11,000 रुपए, माशा अल्लाह। ये देखिए आरिफ नवाब, माशा अल्लाह 5,000 रुपये। आरिफ नवाब 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। मुझे लगे शहादत भाई फ्रूट वाले 5,000 रुपये। लिखो मौलाना, शहादत भाई फ्रूट वाले 5,000। मोहसिन भाई फ्रूट वाले 1,000 कैश, 1,000 कैश नकद, अल्लाह कबूल करे। ये कैश भी रखो मौलाना, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह बेहतरीन बदला दे। जिसकी जैसी हैसियत है अपने अपने नामों का इजहार करते हैं। आसिफुद्दीन भाई कैश 1,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। शेख अंसार शेख मलंग 10,000 रुपये। लिखो मौलाना, शेख अंसार शेख मलंग 10,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। देखिए ऐसा लग रहा मुझे कि हातिम ताई यही पैदा हुआ था। शाकिर खान साहब 10 ट्रक रेती, बहुत जोर से कहो, अल्लाह कबूल करे, आमीन। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बहुत अच्छे। फटाफट लिखाते जाओ, हर आदमी लिखाएंगे आज। फकीर खान साहब की तरफ से कैश 2,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बतला दे भाई, देते जाओ भैया। बाहर से आने वाले हजरात भी बतला है। हाँ, शेख रोशन साहब जिनको सबसे ज्यादा मजा आ रहा था, माशाअल्लाह। सही बोलो ना बाबा? बिल्कुल। 500 रुपये कैश, सही है ना? माशाल्लाह। शमशेर खान लाला साहब माशाल्लाह 10,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। शमशेर खान लाला 10,000 रुपये, लिखो फटाफट। ये शमशेर भाई के अभी ऐसे नाम को लिखाए उन्होंने, बाद में और आएंगे। हाँ, मोहम्मद इलियास कुंदन माशा अल्लाह 10,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। वाह भाई वाह। हाँ, वसीम भाई ढानकी कितने? 1,000 कैश, अल्लाह कबूल करे। 1,000 कैश वसीम भाई, माशा अल्लाह।
मरहूम मोइनुद्दीन नवाब 2000 रुपए कैश। जज़ाकल्लाह खैर। लाओ ये चिट्ठी भी जमा करो मौलाना, बाद में तुमको नाम के लिए काम आई, मैं बोल देता हूं। कदीरुद्दीन नवाब माशा अल्लाह, मरहूम मोइनुद्दीन नवाब 2000 रुपये, कदीरुद्दीन नवाब 1000 रुपये, कलीम पठान साहब 11000, गनी भाई 1000, अंसार खान पठान 5000, शेख आजिम गाजिम भाई 10,000। माशा अल्लाह, ये चिट्ठी ले लो, ये संभाल कर रखो आप, है ना, पूरे नाम लिखो, पूरे नाम। शेख ईसा मरहूम के ईसाले सवाब के लिए, ये देखो अपने माँ बाप या अपनी औलाद या अपना कोई रिश्तेदार दुनिया से चला गया है तो सबसे बेहतरीन तरीका है उसके नाम से मदरसे या मस्जिद में दे दो। माशा अल्लाह 11,000 रुपए मरहूम के ईसाले सवाब के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। बतलाते रहे भाई, मरहूम बहुत से हजरात अभी नाम नहीं आ रहे उनके, शहर शेख अरशद शेख जब्बार, नाम नहीं आ रहा है, बतलाते रहे। शेख अरशद शेख जब्बार 2000 रुपये। माशा अल्लाह, लिखते जाओ मौलाना, ये लिखने वाले थक गए। देखो ये क्या है, उमर दराज खान, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, आमीन। 10,000 रुपए। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये देखिए गुमनाम बंदा खुदा 1000 कैश रखो। मोहब्बत भाई राजस्थान वाले, राजस्थान मेरे ख्वाजा अजमेरी में चिश्ती हूं, माशाल्लाह 500 रुपये कैश। माशाल्लाह शेख रहमुद्दीन मरहूम के ईसाले सवाब के लिए है ना, 100 गोनी सीमेंट। माशाल्लाह, अल्लाह बेहतरीन बदला दे। आमीन अयूब साहब उद्घाटन में बुलाना वाला इंशाअल्लाह। शेख अल्ताफ शेख महबूब माशाल्लाह 5000 रुपये। शेख अल्ताफ शेख महबूब 5000 माशाल्लाह। बतलाते रहे, हाँ भी बतला। शेख महबूब भाई 1000 कैश। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अभी दुआ हो जाएगी, दुआ बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ? शेख गुलाब साहब, पीछे वाले बतला रहे। अच्छा जामशा वाले कहते हैं 500 रुपये कैश। माशाल्लाह शेख गुलाब 500 रुपये कैश। शेख रहीम शेख इसहाक फूल साऊंगी 500 रुपए कैश। माशाल्लाह। क्या नाम? शेख अफरोज 1500 रुपए कैश। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्ताफ भाई 3000 रुपए, बबलू मिस्त्री 10,000 रुपए और हारून पटेल साहब 1000 रुपए। माशाल्लाह, ये चिट्ठी लिखो मौलाना, देखो चिट्ठी गिरी, पीछे भी और है। हाँ आसिम भाई 5000 रुपये। माशाअल्लाह, ये चिट्ठी जमा लो मौलाना, चिट्ठी आप ये, हाँ अल्लाह लो, हाँ जो हो गया ना तो वो दे दो ना उनके पास, वो बाद में उनको जमा होगी ना। ठीक है, चलिए और लिखाते जाइए। मरहूम नूर खान लाला, उनके इसाले सवाब के लिए 2000। मरहूम नूर खान लाला 2000 रुपये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत लाला 1000 रुपए कैश। माशाल्लाह, मोहब्बत लाला 1000 रुपए कैश। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बतलाते रहे भाई, और बतलाओ जल्दी जल्दी। हाँ शेख शमशुद्दीन भाई फूल जाऊंगी, माशाल्लाह 5000 रुपये। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। शेख शमशुद्दीन भाई फूल जाऊंगी 5000 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्द, देखो अल्लाह के दीन के काम रुकते नहीं, अगर अपन नहीं इस्तेमाल हुए तो अल्लाह किसी को भी लाकर खड़ा कर देता। अभी मैं आ रहा था, मैंने मुबीन साहब को बताया, मैं झारखंड गया था पिछले साल, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहां कहां गया, तो अभी मुझे वहां से झारखंड से किसी ने फोटो भेजा। मेरा कल भोपाल का उसने प्रोग्राम देखा तो मुझे फोटो भेजा, मुफ्ती साहब आप हमारे झारखंड में आए थे, रांची के हवाई अड्डे पर मैं आपको लेने आया था, आप जिस मस्जिद की कुदाल मार कर गए थे वो मस्जिद देखो कितनी शानदार बन गई। उसने मुझे फोटो भेजा। ईसा भाई 5000 रुपये। माशाल्लाह, ईसा भाई 5000 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहूम गौसुद्दीन साहब 1000 रुपये। मरहूम गौसुद्दीन साहब के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपये। सैयद सलाउद्दीन साहब 1000 रुपये और फारूक साहब, अफजल खान गफ्फार खान 2000 रुपये कैश। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सलाउद्दीन साहब बालापुर वाले, इनकी तरफ से 1000 रुपये और फारूक भाई ढानी वाले, इनकी तरफ से 1000 रुपये। ईसा भाई जागीरदार लिखो, ईसा भाई जागीरदार 5000। माशाल्लाह, ईसा भाई जागीरदार 5000 रुपये। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे।
जो आमीन बोलते रहो भाई, देने वाले की हम आमीन बोल सकते भाई यूनुस आमदार, अल्लाह इनको आमदार बनाए। हैं। आमीन 1000 रुपए कैश। बतलाते रहो भाई। देखो अभी दुआ होगी, दुआ बहुत काम की चीज है। अय्यूब लाला 2000 रुपये, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो बाबा खुद बोल रहे दुकान अच्छी चल रही है, रुको माशाअल्लाह। चलो अब हाँ देखिए, नहीं मैं खड़े रहता हूँ हमेशा, मैं खड़े की बहन करता। मरहूम हाजी आसिम खान के ईसाले सवाब के लिए 5000 रुपये, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। मरहूम आसिम खान। चलिए अब देखिए, सुनिए 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 सुनिए, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। लेके आओ जल्दी से, नाम लेके आओ। लाते रहो भाई, जल्दी आते रहो। आते रहो। अच्छा अब एक बात सुनो, अब जो मैं जुमला बोल रहा हूं, मेरे को जाना है बाबा, मैं लोगों के जैसा नहीं है, बीवी है मेरे को, मैं ऐसा छोड़ के भागेल नहीं है। अच्छा अब देखो, अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं वो जुमले पर ध्यान देना, जुमले पर ध्यान देना और हाथ उठाना। देखो अब जुमला देखो। हमीद भाई राजस्थान वाले 500 कैश। फारूक भाई ढानकी वाले, लिखो फारूक भाई ढानकी वाले 11,000 रुपये, जज़ाकल्लाह। रहमान भाई पान ठेले वाले 2000 रुपये। कोई चाय वाला नहीं है क्या? और बतला भाई। आते माशाल्लाह। अच्छा अब एक जुमले पर ध्यान दो, देखो। हाँ मौलाना अब एक जुमले पर ध्यान दो, मुबीन साहब आप भी देखो। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं, मौलाना लोगों आप भी देखो, ये चंदे का स्टाइल है। मैं चंदा स्पेशलिस्ट हूं पूरे हिंदुस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मस्जिदें अल्लाह ने मेरे जरिए से बना दिया, मुझे खुशी है इस बात पर। देखिए अल्लाह को हाजिर जानकर, अल्लाह सबको जानता है। कौन इतना गरीब है, अल्लाह ने किसको इतना गरीब बनाया जो रमजान तक 1000 रुपए नहीं दे सकता? वो हाथ उठाओ। सुनो सुनो, कौन इतना गरीब है जो रमजान तक 1000 नहीं दे सकता? मौलाना इसका मतलब मंसूर साहब, मुबीन साहब, अय्यूब साहब, इसका मतलब इन्होंने मान लिए कि हमको अल्लाह ने इतना गरीब नहीं बनाया। अब सुनो मेरे यारो, ये कैमरे खराब हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, अल्लाह के कैमरे कभी खराब नहीं होते। अल्लाह, मैंने जो कहा वो अल्लाह ने सुना भी और देखा भी, और आपने एक ने भी हाथ नहीं उठाया, यानी आपने माना कि हम इतने गरीब नहीं है। तो अब रमजान तक 1.5 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि रमजान में भाव खुल जाएगा 1 का 70, 1.5 महीने के अंदर अंदर एक एक आदमी को कम से कम 1000 रुपए देना है, और सब देंगे। अब हाथ उठाओ मुझे। माशाल्लाह, हो गया मौलाना काम तुम्हारा। जी साहब सुने नहीं क्या? हाँ माशाल्लाह। अब देखिए अल्लाह के यहाँ गरीब के पैसे की बहुत कीमत है। ऐसा नहीं कि कोई 20,000 लिखा रहा, कोई 50,000 लिखा रहा, कोई 10,000 लिखा रहा। तो गरीब मौलाना मंसूर साहब कोई 100 रुपये देना चाहता है, लेकिन उसको शर्म आती कि यार मैं हजारों के बीच में 100 रुपये कैसे दूं? मुबीन साहब उसको शर्म आती है। तो मैं चाहूंगा मंसूर साहब कि आप गरीबों को नेकियां कमाने से रोको मत। मेरी दरखास्त है आपसे, मैं चाहूंगा कि आपके 4-5 लोग रुमाल घुमा लें, ताकि आज हर आदमी को नेकी कमाने का मौका मिल जाए। जल्दी से रुमाल घुमा लें। परवीन शेख, मरहूम शेख उस्मान के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपए कैश। अपनी हैसियत के मुताबिक डालते रहे इसमें। जिन्होंने नाम लिखा है भाई हर एक के पास झोली जाएंगी। जिन्होंने नाम लिखा है वो आज कम से कम 100 जरूर डाले, क्योंकि आज अपना खाता खुलने को होना, आज खाता खोलने को ना। माशाल्लाह। अच्छा औरतों में भी रुमाल घुमवाओ। अब्दुल रहमान भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए 1100 रुपये। माशाअल्लाह। आरिफ अशरफ अली निन्नौर कितने? 500 कैश लेते आओ। कैश रखते हो, कैश गिन लो जरा, कितने होंगे? यूसुफ भाई चूड़ी वाले, लिखो मौलाना, यूसुफ भाई चूड़ी वाले 5000। मरहूम इस्माइल मिस्त्री के इसाले सवाब के लिए 1000। शेख छोटू शेख इमाम
है ना 1000, शेख राजिक शेख जावेद 2000, अलीम बेग 2000, अफरोज भाई 2000, अमीर भाई 2000, अमीर भाई गैलरी 2000, महबूब भाई सब्जी वाले 5000। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। ये जो दस्ती आ रही है हर आदमी इसमें हिस्सा लेते रहे। शेख निसार शेख बशीर कितने कितने 5000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 17.5 हुई भी कैश। माशाअल्लाह अब्दुल्ला खान साहब की जानिब से 25 थैली सीमेंट। जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल्ला खान साहब 25 थैली सीमेंट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी बोलो। मरहूम अब्दुल अजीज के इसाले सवाब के लिए 2000 रुपये। मरहूम अब्दुल अजीज 2000 यार डाल दो, जो आ रहे हैं थैली में झोली में वो यहाँ डाल दो इकट्ठा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब थोड़ा अंदर आ जाओ क्योंकि अपनों को दुआ करना है। मैं दुआ पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैं दुआ पर बहुत ज्यादा। अब जो खड़े हुए ना वो भी बैठ जाओ, जरा है जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बैठिए। अब 5 मिनट की दुआ रहेगी तो उसको कम से कम खड़े रहकर मत, उसका भी एक अदब होता है मांगने का भी अदब होता है। फकीर भी जब मांगता है ना कभी कभी इस स्टाइल से मांगता है कि हर आदमी उसको देता है, और वो तो शान वाला है, ऊंची शान वाला है। हम उससे मांगेंगे वो हमको जरूर देगा। अभी इनामात, हाँ ठीक है ना, इनामात जो बच्ची है मौलाना, कहाँ है बच्ची है सब, कहाँ है? तो उनको बुलाओ ना, अगर आपको देना है भी तो उनको बुलाओ ना। फिर जो बेटियां इनामात लेने वाली है उनको यही देना है ना इनाम। हाँ जो बेटियां इनामात लेने वाली है वो सब आ जाओ, किसी के नाम की जरूरत नहीं। जिनको इनामात मिलने वाला है उनको सबको मालूम है किसको इनाम मिलने वाला है। रफीक गौरी 2000 रुपये। माशाल्लाह लिखो मौलाना, माशाल्लाह झोली भर दी आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो बेटियां इनाम लेने वाली है फौरन आ जाओ। चलिए भाई जल्दी जरा। हाँ बेटियां जो इनाम लेने वाली है जल्दी आ जाओ, नाम बोलने की जरूरत नहीं। शाहिद भाई बेटियां जल्दी आ जाओ, 1-2 मिनट के अंदर आपको इनाम दे दिया जाएगा। चलो आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। शाबाश वेरी गुड, आ जाओ। ये सनद बदल भी गए तो चलेगा मौलाना, वो एक दूसरे के नाम बदल लेंगे बाद में। सिर्फ अभी फॉर्मेलिटी के तौर पर हाथों से सनद दे दो, बाद में वो नाम खुद ही एक दूसरे का देखकर ले लेते, बदल लेते। मौलाना मंसूर साहब आइए इधर। ये इनको क्या करना है? देने का। अच्छा 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 ठीक है। एक किताब एक जी इधर से उतरने का है कुछ? उतरने का रास्ते इधर से। एक करके आ जाओ बेटा। एक आ जाओ बेटे, थोड़ा आप लोग थोड़ा पीछे से हट जाओ। मौलाना आप पीछे। अच्छा सनद हम सुनो, जो भी आएगा उसके हाथ में हम सनद दे रहे हैं। आपका नाम अगर बदले हुआ है तो बाद में अपने एक दूसरे को देखकर बदल लेना, ठीक है? ओके, हम जल्दी जल्दी करने के लिए आपको दे रहे हैं फौरन। हार भी उन्हीं के लिए। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। ये दादा तुम्हारे गले में हार डालेंगे, मुफ्ती साहब सनद देंगे और मौलाना किताब देंगे। ये दादा तुम हार डालो। चलो माशाल्लाह। दादा हार डालेंगे, दादा गले में हार डालेंगे आपके माशाल्लाह। मुफ्ती साहब सनद देंगे और मौलाना अयूब साहब इनाम देंगे। आइए जल्दी जल्दी। नाम बाद में आपने तब्दील कर देना एक दूसरे का। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मोमिना वाली बच्चियां हैं वो भी आ जाइए। ये बच्चे हो जाओ, दूसरे बच्चे बुला लो।
मोमिना वाली बच्चे आ जाइए बेटा, आओ जल्दी आओ बेटी, आ जाओ इधर से आ जाओ। माशाअल्लाह, वहाँ उधर उठा के दो। लो बेटा, हाथ में लो, गले बजा लो। एक बाद में आपकी ग्रुप फोटो लेंगे, एक तरफ वही रुक जाना। अभी बाद में एक साथ तुम्हारा फोटो लेंगे, हैं? अभी यही रुको आप लोग, चिंता में। चल हाथ ले, पहले हाथ नाम बदल लो, बाद में नाम बदल लेना, जिसका नाम है वो बदल लेना। जिसका नाम है बाद में बदल लेना आपने। यहाँ बाजू में रुक जाना, एक ग्रुप फोटो ले जाएंगे आपकी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सबके दादा है बेटा, हमारे भी दादा है ये। नाम बदल लो। और कौन बच्चे को रहेंगे? माशाअल्लाह, ठीक है। वो जो कुछ नहीं आएंगे, सब सब हो गए। सन आना है, नाम तेरा नहीं मतलब ले लेना, जिसके पास तेरी। और किसको नहीं आ जाओ इधर। बेटा अब साहब माइक में बोलो ना। नहीं आएंगे, चलो बस। जिनको सनद नहीं मिली वो आकर ले लो यहाँ पर। देखो फूल सॉन्गी वालों, कितना प्यारा मंजर है। आज हमारी बेटियां हमारे हाथों में हैं, उनके पर्दे को कोई उतार नहीं सकता है। आज ये बेटियां गैरों के हाथ में जाती है तो वहाँ कुछ शैतान शर्त लगाते हैं कि हम इनको नकाब में आने। अरे बोलो है ना, अभी वो दिल फुटिया कर रहा ना बदमाशी। अरे बोलो ना इतना सा है मगर उड़ रहा हो। चलो ठीक है बेटा, हाँ हाँ देखेंगे, हाँ किताब भी हो ना। चलो चलो बैठ जाओ जल्दी से। अब जोर से दुरूद शरीफ पढ़ो। दुआ शुरू कर रहे हैं हम लोग, जोर से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। भाई मौलाना याकूब साहब मोहतमिम दारुल उलूम अनवारुल इस्लाम एवत महल, इनकी सेहत के लिए हमें दुआ की अपील आई है, हम उनके लिए दुआ भी करें। दुआ की अपील। चलो आप पहले बोलो जो करना है वो। आप बैठिए। जनाब नवाब जानी साहब से गुजारिश है, मुफ्ती हारून साहब गुलपुशी करेंगे। ये हमारे मस्जिद के यहाँ के जिम्मेदार शख्स है और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के ही नहीं पूरे शहर के जिम्मेदार हैं। सियासी एतबार का अल्हम्दुलिल्लाह का असर उसुख भी यहाँ पर। असल में मुफ्ती साहब यहाँ नसीर खान बशीर खान साहब तशरीफ लाए। आइए माशाल्लाह। यहाँ चंद दिन पहले एक जलसा हुआ मुफ्ती साहब मदरसे की इफ्तिताह हुई, उसमें लोगों ने लाखों रुपए लिखा है माशाल्लाह। और फिर इसके बावजूद आपकी आमद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी और मजीद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दी है। चलो अभी क्या अब्दुल्ला खान साहब तशरीफ। देखिए मेहमानों की इज्जत करना ये भी हमारा अपना तरीका है। माशाल्लाह आपके गांव वाले उलमा की इज्जत भी कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, स्वागत सत्कार और सम्मान कर रहे हैं।
मौलाना हाफिज डॉक्टर हाफिज मुबीन साहब सिराजी, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, सत्कार और सम्मान किया जा रहा है अब्दुल्ला भाई के हाथों से। माशाल्लाह। और कौन? माशाल्लाह तमाम उलमा को, क्या बात है, माशाल्लाह तमाम उलमा का भी इस्तकबाल किया जा रहा है। जल्दी करो। हाँ चले, हाँ दो लोग मिलके सब दो ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन बदला दे। यकीनन प्यारे नबी ने फरमाया कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, वो आहिस्ता मारना, वो हार। चलो ठीक है, ये रस्म है मौलाना एक, वरना आपका एहतराम तो दुनिया जाने ना जाने मगर अल्लाह जानता है। देखो वो दस्ती में जो चंदा आया 15,415 रुपये, दस्ती में जो चंदा आया 15,415, और कैश जो आया वो 17,000 के करीब आया है माशाल्लाह। और खवातीन तो आपसे ज्यादा देंगी, इसलिए उनका भी गिनती नहीं हुई है, वो आएगा खवातीन की तरफ। और ये सब नाम लिखे हुए। अच्छा एक खास बात सुन लो, जिन्होंने नाम लिखा है, देखो हम ना उनको जानते हैं, ना उनका पता मालूम है बहुत सारे लोगों का, ना मोबाइल नंबर, और ना ही हम किसी का पता लिखेंगे ना मोबाइल नंबर लिखेंगे। आपने लिखाया है, आपका रब जानता है। देखिए आपने लिखाया है, आपका रब जानता है। आज के जमाने में देना आसान है, आप मौलाना का नंबर लीजिए, गूगल पे फोन पे लीजिए, और आपने जो लिखाया था आप खुद उनको फोन करके बताइए कि साहब मेरा ये नाम है, मैंने इतने लिखाया था, ये आपको मैं पैसा आकर दे रहा हूं या फोन पर दे रहा हूं। करेंगे इंशाल्लाह इस तरीके से। तो हाँ फिर कैसे लेंगे तुमको इधर मुँह करके पर दुआ करा लो, फिर बाद में लेने जाते थे। हाँ चल लाओ फिर जल्दी से लो। बेटा प्यारी बेटी इधर आ जाओ। तुमको इस इदारे से फारिग किया गया, आपने यहाँ पर पढ़ा, एक रिकॉर्ड, हुकूमत के पास भी एक रिकॉर्ड लगता है, इसलिए आपकी तस्वीर यहाँ पर लेकर ली जा रही है। थोड़ा सा नहीं बस छोटे बच्चे, बस ज्यादा पीछे होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो प्यारी बेटी हो तुम सब आ जाओ इधर, और अपनी डिग्री लेकर खड़े रहो, उधर घूम के उधर मुंह करके। प्यारी बेटी, जो छोटी बेटी है वो आगे रहे, बड़ी बेटी आगे आ जाए, या पहले इनका एक ग्रुप ले लो। हाँ नहीं पहले एक लाइन से आओ ना इधर बेटा, और रानी इधर बेटा।